Now we were talking about SWOT analysis, opportunities. Okay, fine. अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा हम लोग रिकैप्चुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि रिदम में आ सके. ओके फाइन. अभिषेक, यस सर. जरा अपॉर्चुनिटीज को पढ़ो. ग्रोइंग ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. डिस्प्ले नहीं दिख रहा है सर. वेद पढ़िए. Yes, sir. Opportunities. Growing global automotive industry. The global automotive industry was severely affected by the economic downturn, with a decline in revenue being recorded in 2008 and 2009. However, 2011 saw a strong rebound, which has continued into 2012. According to MarketLine, the global automotive manufacturing industry grew by 8.9% in 2012 to reach a value of $1,563.9 billion. Recovery of global अभी ये right now I want to know, ठीक है, ये असाइनमेंट है कि जैसे because of corona and lockdown and all, the automotive industry has faced a severe decline, ठीक है. अब जब लॉकडाउन खत्म होगा, ठीक है, होपफुली, ठीक है, जब भी, तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, इन लोगों का प्रोजेक्शन क्या है, कितने परसेंट से ग्रो करेगा और वो मार्केट फिर कितने बिलियन डॉलर्स का होगा एक्सपेक्टेड, ठीक है. दैट आई वांट टू नो. मतलब करंट सिचुएशन, लेट्स से कि 2022, 2021 भी थोड़ा स्ट्रगल ही लग रहा है हमको, तो टॉक अबाउट 2022 और 2023, उस टाइम में क्या प्रोजेक्शन है, ठीक है. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर प्लेइंग इन इंडिया, ठीक है. इसका परसेंटेज हमको आप बताइएगा, ठीक है. ओके फाइन, आगे पढ़िए. The recovery of global automotive industry thus provide Toyota an opportunity to gain more customers and increase revenue. फाइन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Toyota poised to benefit from growing partnership with BMW. एग्जैक्टली. Toyota is poised to benefit from the growing partnership with BMW. In June 2012, BMW and Toyota signed a memorandum of understanding aimed at a long-term strategic collaboration. As part of agreement, the two companies will partner for the joint development. Strategic collaboration on technological fields. It means that with respect to technology, BMW is a step forward. थोड़ा आगे है. Yes, sir. Fine. तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में या मशीन्स की इंडस्ट्री में, you know, this part of the world, the name is called Germany, the country. तो they are much ahead, ठीक है, from the rest of the world. तो जो भी कंपनी को अगर आप देखें, जिसका भी केस स्टडी करेंगे अगर ऑटोमोबाइल का, उसमें फिर है कि जर्मनी की एक कंपनी या BMW का नाम आता ही है, बिकॉज दे आर मच अहेड ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. तो नाउ अगेन टोयोटा, ठीक है, दे हैड अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स विद BMW, and then the things started moving more faster. So now the consideration of, you know, as we discussed earlier, that it's all about Jidoka and just in time and Kaizen, continuous improvement and all, right? So with respect to continuous improvement, it is not necessary that if I'm not able to do the technological advancement, then I will join hands with the better team and then we will work. So that was the, you know, strategy. Fine. ठीक है, आगे पढ़िए. As part of agreement, the two companies will partner for the joint development of a fuel cell system, joint development of architecture and components of a future sports vehicle, collaboration on powertrain electrification, and joint research and development on lightweight technology. A growing partnership between the two companies are expected to boost the technological know-how of companies and may result in development of a new product, thus increasing revenue in long run. Also, in the short run, the combined partnership will result in significant synergies and cost saving, boosting the operational margin.
अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है ये क्लास, ठीक है, इसको आप मार्केटिंग 4P में किस नजर से आप देखते हैं? इसको किस तरफ इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ये जो टाई अप हुआ, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हुआ, ये किनका इंग्रेडिएंट बना कि नाउ दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ टू स्पीक, बहुत सारा उनको ये मिल गया, पॉइंट्स मिला, ठीक है, नाउ दे कैन स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा खुश होता है? और इस बातों को पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन। नाउ द पब्लिक रिलेशन टीम जब वो से आपका ये क्या कहते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार एंड वेबिनार आल्सो एंड सो फोर्थ, तो वो जब इस बात को लेकर के बैठेंगे तो they'll feel much कॉन्फिडेंट, यस सर। Yes, sir. है ना? तो these are all the things that we need to monitor कि what exactly company is doing and we need to understand। अब ये जो बात है, जो कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया, अब ये एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट बन गया आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। And now they can confidently go among the people and they can say that now we are with BMW, this Toyota people, okay, and now you can have a more trust because BMW ka it's all about trust with respect to technology and the robustness of the machine and all. Clear hua? आकांक्षा, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? तो यस। why I'm not able to listen to you all people? आपकी क्या आवाज सर? Yes, sir. Okay, मतलब Yes. ओके ओके फाइन। खैर, तो इसमें एक चीज और है हम लोग को सीखने के लिए कि दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वॉट एवर दे आर डूइंग need to, or we need to monitor that what they are going to give next। तो उस फ्रीक्वेंसी को, उनके सोच को समझना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो टेक्नोलॉजी वो जब उन्होंने बना दिया उसके बाद फिर आपने उनको समझा उसके बाद आपने बात किया, नहीं। वो किस सोच से काम करते हैं, उनकी सोच को आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उस फ्रीक्वेंसी में मैच करना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस को। दिस इज द विजन, तब जाके विजन क्लियर होगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द कंपनी मोर प्रॉपर्ली, ठीक है, इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केटिंग है, सेल्स है, सब लोग हैं, इन्हीं का डायरेक्ट कनेक्ट होता है विद द कस्टमर्स एंड ऑल। तो अब है कि वो फील और वो फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड प्रोडक्ट और व्हाट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज डिजाइन, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनगोइंग प्रोसेस एंड द माइंडसेट, वो किस माइंडसेट से, किस फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं। क्लियर है? तो जब भी आप जहां भी काम करें तो भाई रिसर्च जो भी उनका जो लिटरेचर है वो सबको मॉनिटर करना है हम लोग का, देन ओनली विल ग्रो। सर ठीक है, आगे पढ़िए। Strong outlook स्ट्रॉन्ग आउटलुक। of the global new car market. The global new car market has experienced moderate growth during 2008 to 2012. However, forecasts suggest that this will accelerate to strong double-digit growth during that provide a growth opportunity for the company. ठीक है, एक चीज और ये आप लोग बात मान के चलिए, ठीक है, और ऑफ कोर्स अब तो तजुर्बा हो आप लोग इसकी व्हाट इज इकोनॉमिक रिसेशन एंड आर्थिक मंदी क्या होता है, ठीक है। तो चूंकि कोरोना हुआ तो उससे नाउ यू विल बिकम मोर रॉबस्ट, क्योंकि फाइन ये भी एक सिचुएशन होता है। तो दैट इज कि अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस का प्लानिंग करना होता है। अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस में वॉर है, स्ट्राइक है, पैंडेमिक है, ये सब सारी चीज है।
तो व्हाट इज योर प्लान डी, उसका भी प्लान करना होगा आप लोगों को। तो नाउ द थिंग इज दैट कि एक जो इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है, आर्थिक मंदी, ठीक है, वो हर टाइम चलती रहती है बाबू, वो खत्म नहीं होता है। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे एक बीमारी खांसी, वो अभी हेलो क्लास आवाज कट रही है सर। आवाज कट ये रहा हमको था। हमको भी यही फील हो रहा है। एक सेकेंड। ठीक है, अभी आवाज क्लियर आ रही है थोड़ी? अभी क्लियर हो? यस सर। ओके, तो एक इकोनॉमिक रिसेशन हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। हो सकता है कि इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, जीडीपी बहुत बेहतर हो गया है, इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल्ड है, बट स्टिल एक एक फीचर हो गया है, ठीक है, आर्थिक मंदी का, वो रहता ही रहता है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री शिफ्ट होता रहता है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि इकोनॉमिक रिसेशन इज ऑल अबाउट कि परचेजिंग पावर घटता है, परचेजिंग पावर मेरे यस खरीदने की क्षमता घटती, मतलब घटती रहती है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो अब उस घटती जो प्रक्रिया है, दैट इज की यू नो परचेजिंग पावर का, तो उसी वही आपके टारगेट ऑडियंस है, आपके टारगेट ऑडियंस भी वही है। ऐसा नहीं है कोई टारगेट ऑडियंस आप बदल लेंगे। इंडिया का जो मार्केट है, तो उन्हीं उन्हीं लोगों को आपको कैटर करना है, उन्हीं से आपको पैसा कमाना है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि यू नीड टू, अब देखिए यहाँ पे है कि फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम। तो व्हाट इज दिस फ्यूल एफिशिएंट? दैट इज 1 लीटर मोर नंबर ऑफ 1 of kilometer. So in that Yes, way sir. you have to design, you all have to design your this all the activities so that you can offer a very economical rate to the existing customer who are suffering from, who are facing this economic recession, and they can invest. तो जब तक इकोनॉमिकल प्राइस आप नहीं उनको देंगे, ठीक है, तो फिर सस्टेन करना मुश्किल है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर हुई? Yes, sir. ओके फाइन, Yes, ठीक है, sir. ओके, ठीक है। थ्रेट्स, थ्रेट्स को कोई और पढ़िए, थ्रेट्स को कोई और पढ़िए, आकांक्षा पढ़िए। Yes, sir. Threats intense competition. The worldwide automotive market is highly competitive. Toyota faces strong competition from automotive manufacturers in its various markets. The competition among various auto players is likely to intensify in the light of continuing globalization and consolidation in the worldwide automotive industry. The factor एक impacting मिनट, कंसोलिडेशन को, ये वर्ड को आप लोग लिख लीजिए। कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त वर्ड हो गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। खैर पूरा पढ़िए तो हम इस पे फिर कुछ बात बोलते हैं। The factor impacting competition include product quality and features, the amount of time required for innovation and development, pricing, delivering downward pricing pressure. This impacting the financial condition and result of operation of the company. ठीक है, ये व्हाट इज कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। व्हाट इज कंसोलिडेशन, मुस्कान मल्होत्रा? फिर अपने आप को इतना पावरफुल बना ले कि फिर वो कंटिन्यू चले और डाउन होने का कोई चांस ही ना हो। नहीं, वो तो एक बात हुई, ठीक है। कंसोलिडेशन क्या हुआ? कंसोलिडेशन क्या होता है? वेद बोलिए, हिमांशु, हिमांशु, अभिषेक, व्हाट इज कंसोलिडेशन? मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ?
सर्च करके बोलिए, सर्च करके बोलिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सर समथिंग लाइक कि लोकल हो रहा है हर एकीकृत चीज करना होता है ना सर, पास एकदम। फिर से एकीकृत बोलो। करना होता है ना मार्केट को। हाँ ठीक है, फिर से बोलो एकीकृत अभिषेक। करना मतलब एक जगह, एक जगह एकीकृत करना सर, सबको साथ करना। सबको साथ करना, अच्छा ठीक है। तो दैट इज की इसको कैसे, संगठित जैसे करना। बैंक बैंक जो है अब सब वो एक जगह कंसोलिडेट हो रहा है, सारा बैंक मिलकर के एक बैंक बन रहा है। मर्ज, Yes, यस मर्ज अच्छा। करना। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि दोनों के रिसोर्सेज साथ में आ सके और सॉलिड दोनों के बन सके। दोनों के रिसोर्सेज मिल जाए और कस्टमर को और बेहतर सर्विस मिल सके अंडर वन रूफ, यही बात हुई। अच्छा, तो अब है कि ऐसा क्यों Yes. हो रहा है, अब बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी किसी भी चीज को समझने के लिए इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस एक्टिविटी। ऐसा क्या हुआ कि अब ये हो रहा है। कोई चीज होता नहीं है, ठीक है, कोई चीज माजी में पास्ट में होता है और उसका परिणाम होता है, आफ्टर मैथ होता है कि फिर वो ये एक्टिविटी को, इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक तो हम लोगों ने पीएलसी में पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी, प्रोडक्ट मैच्योरिटी, ठीक है। तो मैच्योर कर रहा है इसका मतलब है कि वो आगे एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, सारी चीज वो उसको एक पहलू से हम लोगों ने समझा। अब जरा इसको जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, उनका मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, उनका मैच्योरिटी लेवल। तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मोबाइल एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मोबाइल का मार्केट भी कंसोलिडेट हुआ है, मोबाइल का मार्केट भी कंसोलिडेट हुआ है। बहुत सारी लोकल कंपनी वैनिश कर गई, बहुत सारी लोकल कंपनीज मोबाइल की, ठीक है। बहुत सारी चाइनीज कंपनी छोटी छोटी, माइक्रोमैक्स है तो लावा है तो ये है वो है, बहुत सारी, वो सब वैनिश कर गई। यस सर। Yes, अच्छा, yes. क्यों Yes, sir. क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया। No, wait, नहीं कर। टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया। विथ रिस्पेक्ट टू हुम, किसके रिस्पेक्ट में? कस्टमर के रिस्पेक्ट में, Yes, कंज्यूमर्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पहले ये मोबाइल बहुत बिका, माइक्रोमैक्स लावा बहुत बिका, है ना, उसके बाद बंद हो गया। अब ये समझना होगा कि व्हाई इट हैपेंड। कस्टमर भी वही है और परचेजिंग पावर भी बहुत बढ़ा नहीं है, जबकि परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता तो घट रही है बाबू। और उसका परफेक्ट पैरामीटर है आपका पेट्रोल और डॉलर। हर बार तो बढ़ ही रहा है पेट्रोल, हर बार तो डॉलर बढ़ ही रहा है। पेट्रोल को भी छोड़ देते हैं कि वो चूंकि वो इकोनॉमी परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ताकि उसके टैक्स जो हाथाहंड, मतलब भाई अगर टैक्स ना हो तो 35 रुपए का लीटर तेल हो जाए। डॉलर का रेट ले लेते हैं हम लोग, तो डॉलर का रेट कभी, जब से आप डॉलर के रेट को अगर देख रहे हैं, कभी घटता हुआ नजर आया है? एनी डे, एनी सिंगल डे? हर दिन तो वो बढ़ता ही है। तो डॉलर का रेट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा रुपया दे करके $1 खरीदना पड़ेगा, yes sir. ज्यादा रुपया दे करके $1 खरीदना पड़ेगा। सिंपल। अब अगर डॉलर का ये हो, सब चीज ना इफेक्ट हो जाएगा। अब हर चीज में ज्यादा रुपया दे हमको वो सामान खरीदना पड़ता है। जो भी आप बात कीजिए, टीवी है, आटा चाट, शूज है, भी एक बात कर लीजिए, हर दिन तो थोड़ा ज्यादा पैसा दे करके खरीदना पड़ता है। या नहीं तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कीजिए, उतने ही रुपए में जो पहले आप जो क्वालिटी खरीद रहे थे वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, उतने ही रुपए में अब कम क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, ओके फाइन। तो नाउ द थिंग इज दैट कि ये जितने जो आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, इनका कंडीशन ओके फाइन कि भाई पैसा में ताकत नहीं है, बट स्टिल वो लोग भी मैच्योर करते हैं, टारगेट ऑडियंस भी मैच्योर करते हैं कि जो मोबाइल है, इट इज नॉट दैट एनी कंपनी का मोबाइल,
ठीक है, एंड इट क्वालिफाइज द डेफिनेशन ऑफ अ मोबाइल। ठीक है, तो अब मोबाइल में आपका सैमसंग इज अ मोबाइल, राइट, आपका रेडमी एंड सो फोर्थ जो अभी का है, और माइक्रोमैक्स एंड लावा इट्स ओवर नाउ। अब वो मोबाइल के डेफिनेशन के क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठता है, उसको मोबाइल की संज्ञा नहीं दी जाती है, दैट इज नॉट अ मोबाइल। तो ये बात एक्चुअली क्या हुआ कि कस्टमर जब इस्तेमाल करने लगे, फिर उनका भी मैच्योरिटी आया कि नाउ मोबाइल मींस दिस। उनको वो सारा फीचर, सर्टेन सेट ऑफ फीचर्स, लेट्स से 15 सेट ऑफ, ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, नहीं बहुत धीरे से ये सर आया है। Yes. तो अब अगर इस तरह से, अगर जब लोग मैच्योर करते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, but this is not a mobile, actually Samsung and Redmi and so forth, that is a mobile। तो अब जितना लोकल छोटा छोटा जो कंपनी है वो वानिश करेगा, तो जब कंपनी वानिश कंसोलिडेट करेगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। Yes, sir. क्लियर हुआ? फाइन। तो अब जब कंसोलिडेशन उस टाइम पे भी है, कंसोलिडेशन हर टाइम पे होगा, तो कंसोलिडेशन इसको भी सीखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। खैर, तो अब उस कंसोलिडेशन में क्या हुआ कि कस्टमर्स का मैच्योरिटी लेवल तो ऊपर हो गया ना बाबू, कार के हिसाब से। कार के हिसाब से अब कुछ भी बना करके एक हल्का फुल्का कार बना दीजिए आप, ठीक है, उसमें एक म्यूजिक सिस्टम रख दीजिए, ठीक है, वो कार को क्वालिफाई नहीं करेगा ना, वो चलेगा नहीं। Yes, तो sir. कंसोलिडेट हुआ मतलब कि वेद है, मुस्कान है, हिमांशु है, अभिषेक है, आकांक्षा, प्रिया है, कल्पना है, ये सब मैच्योर कर गए हैं। अब इनको वो खिलौना से बहलाया नहीं, उस मैच्योर्ड को, ठीक है, कैसा मशीन डिजाइन करके दे ताकि हम भी कंपटीशन में आ सके, लाइक दैट। ये बात को समझना। तो आप जब भी जहां काम करने जाएंगे तो अगेन मतलब अब हर चीज सेल्स हो गया है, ठीक है, सबको रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। तो आप किस तरह से ऑफर करेंगे? कस्टमर मैच्योर हो चुका है, सारा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये हुआ, ये हुआ, बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड है, जितना भी सर्विस का है, ठीक है, वो सब क्वालिफाई नहीं करेगा बाबू, आपको कन्विंस करना होगा और बहुत सारी चीज को कवर करना होगा। क्लियर हो रही बात? इस पॉइंट में हम इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करता है, मतलब कस्टमर्स मैच्योर कर गए। अब उस मैच्योर कस्टमर को, मतलब क्या कहते हैं उसको, पढ़े लिखे कस्टमर्स को, इंफॉर्मेशन उसके पास पूरा है, आप इंफॉर्मेशन उसके पास है, कस्टमर के पास है, नाउ यू हैव टू डील विद देम एंड यू हैव टू मार्केट योर प्रोडक्ट। तो इन दिस वे देन कंसोलिडेशन भी हो रहा था, तो फिर BMW स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड, उसके बाद फिर बहुत सारा फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन हुआ, सारी चीज हुआ कि इट शुड बी स्ट्रांग, एट द सेम टाइम द मशीन शुड बी स्ट्रांग, रोबस्ट टू परफॉर्म इन एनी गिवन सिचुएशन, एंड इट शुड कंज्यूम ये क्या कहते हैं, फ्यूल, एक तो कम फ्यूल करे लेकिन है कि परफॉर्मेंस उतना ही रहे। तो दैट इज अ ब्यूटी। समझिए कि फॉर्च्यूनर किस तरह से डिजाइन हुआ है कि दैट जस्ट लाइक कि सुजुकी अगेन हैपेंस टू बी द जैप्स, एंड देन वो हर रोड पे। क्लियर हुआ? क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. कंसोलिडेशन को और आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। खैर ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। आकांक्षा पढ़िए या मुस्कान मल्होत्रा आप पढ़िए। Yes, sir. Appreciating Japanese yen a major concern. Toyota is sensitive to the fluctuation in foreign currency exchange rates and is principally exposed to fluctuations in the value of Japanese yen, the US dollar, and the euro. The strengthening of the Japanese yen against the US dollar and fluctuation in foreign exchange rate would have a material adverse effect on Toyota's reported operating results, which in turn would impact the valuation of the company. अब ये एक बहुत ही टेक्निकल बात हो गई।
यहाँ तो दिखने में अच्छा लग रहा है ना कि भाई जापानीज येन जो है मतलब इंडियन रुपया मजबूत हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन कभी एक्चुअली ये एडवर्स इफेक्ट करता है कि अब अगर फ्रेंड में तो इससे हुआ कि अगले को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, हमारी करेंसी मजबूत हो रही है इसका मतलब है अगले को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, Yes. सिंपल इक्वेशन है। तो ये भी एक एडवर्स, तो उसमें कभी कभी क्या है कि जैसे उसको मनी को डी वैल्यू किया जाता है, मनी को डी वैल्यू, जबकि उसकी जरूरत नहीं है, मनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स को प्रिंट करके बहुत सारा ये एक्टिविटी है। तो अगर डिवैल्यू नहीं करेंगे, अगले को अगर अगले को कम पैसा दे करके इंडिया में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कम शो करेगा ना, वो इंटरेस्ट कम शो करेगा। तो इसलिए कभी कभी डिवैल्यू करना पड़ता है। और यहां पर क्या हो रहा है कि सिंस द एंटायर जापानीज दे आर परफॉर्मिंग वेल, देयर इकोनॉमी आर परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, तो अब है कि अप्रिशिएट कर रहा है। तो अप्रिसिएशन से क्या है कि ये थोड़ा थ्रेट है कि उसमें प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है, अगले को ज्यादा पैसा देकर के हमारी चीज लेनी पड़ेगी, ये भी एक चीज होता है। उसमें कभी डिवैल्यू किया जाता है सो दैट कि इन्वेस्टर्स हम बढ़ा सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। Natural disasters could impact production structure. Toyota is subject to disruption of production due to natural disaster such as ये तो बहुत earthquake, मदद flood, among others. है। Toyota primarily operates in Japan, which is the highest earthquake-prone region in the world. The country has witnessed many devastating earthquakes in the recent year, which seriously disrupted the economy. In 2011, the country witnessed one of the worst heat earthquake in the history in the form of 2011 Tohoku earthquake, which led to a temporary production halt at its domestic auto manufacturing. halt. Yes, sir. Pause. In the same year, major flood occurred in Thailand, which halted its operations and production of about 1.5 lakh Toyota automobiles. 150,000 paid 1.5 lakh. Such 100. natural calamity, yes, sir, 150,000 हाँ, or something, 150,000 Toyota automobiles. Such natural calamities, if occur frequently, could severely influence the production output of the company due to work stoppage and in turn impact the overall revenue base and profitability. अब ये एक ऐसी बात है, ठीक है, अब ये तो मतलब नेचुरल है, मतलब ऊपर वाले ने, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को, हम लोगों को बहुत आराम की जगह पे पैदा किया है, ये बात समझ लीजिए, बहुत आराम है हम लोगों को, ठीक है। और वहां जो है यहाँ भी आता है, अब तो इधर नहीं, भी डेली आने आता है क्या? नहीं, आने डेली लगा है नहीं मतलब तो उसमें एक मिनट को होल्ड करो। इधर जो अर्थक्वेक आता है उसमें नुकसान कितना होता है? नहीं सर, उसका डेंसिटी कम होता है। हाँ, वो तो कम रहता है। बहुत पैसिफाई होके बाबू, बहुत पैसिफाई होकर के आपको दुख दिया जाता है ठीक है, उसमें भी शिकायत है। अगले जगह पर जो दुख और आपदा आती है उतना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। जापान में जो अर्थक्वेक आता है जिस इंटेंसिटी से, वो तो एपी सेंटर भी वही है। Yes, हमारे sir. यहाँ एपी सेंटर नहीं होता है, एपी सेंटर जो अफगानिस्तान में है उस तरफ की जमीन पे होता है, जिसका ट्रेमर्स हम लोग को आता है। अगर एपी सेंटर इधर हो जाए उस इंटेंसिटी का, तो बाबू अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि बहुत ही रॉबस्ट अपना जो बिल्डिंग जो डिजाइन हुआ है बहुत रॉबस्ट नहीं है, ये पहले बता दें। उसमें सब है, आपका घर, मेरा घर, जो भी, जिसका भी बात कर लीजिए, या जो भी बिल्डिंग है वो बहुत रॉबस्ट नहीं बनी है, वो सिर्फ ट्रेमर आता है, यहाँ पर एपी सेंटर नहीं है। तो अब यहाँ पर है कि वो रेगुलर मतलब हर साल ना कम से कम 1000-1500 अर्थक्वेक आता ही है ऑन एन एवरेज, उससे ज्यादा ही होगा, आप नेट पे सर्च कर लीजिए। और उसमें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस, देयर इज नेचुरल कैलामिटीज एंड इनोवेशन वी टॉक अबाउट। तो इनोवेशन को भी ये compete कर रहे हैं, इनोवेशन को भी compete कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव अ बेटर प्लान। और उसके बाद जितना भी नेचुरल डिजास्टर है जिसमें ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब पूरा शहर ही साफ हो गया और क्या हुआ, पूरा शहर रुक गया, टूट गया, गिर गया पूरा शहर, एक दो मकान सिर्फ नहीं गिरता है, तो उसको इन लोगों ने
किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, तो उसमें एक जगह पढ़ रहे थे कि उन्होंने अपनी सारी बिल्डिंग में स्प्रिंग लगा दिया है। तो अगर जमीन हिलेगी तो स्प्रिंग भी उसको करके कम कर देता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो दिस इज हाउ दीस पीपल लिव एंड वर्क एंड एक्सेल। ये बात समझना होगा। तो दैट इज व्हाई यू नो टोयोटा इज टोयोटा। इतना ज्यादा टफ सिचुएशन इनको मिलता है एंड दे गुड। दैट इज, अब समझ में आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज जिडोका एंड व्हाट इज काइजेन। काइजेन is all about continuous improvement. Continuous improvement. The now this word continuous, it means continuous service. अर्थक्वेक आया तो टोयोटा का प्रोडक्शन बंद कर दें। अब तो सब कुछ सारी फैक्ट्री टूट चुकी है, गिर चुकी है। तो अगेन बाउंसिंग बैक, ठीक है, विद द फुल zeal and full enthusiasm, and again doing the things. And that is why now this it makes a very global strong company like that. नेचुरल डिजास्टर वहां पे बहुत ज्यादा है जापान में। खैर ठीक है, अभी आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये पुराना है, तो ये 2012 का केस स्टडी है। ठीक है, चलिए ये आपका VRI सब मार्केट शेयर होना है। ठीक है, इसको एक क्लास और लगेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. okay. Yes. So finally saying thank you very much for today. Thank you. Thank you, sir. Fine. Thank you, sir.